So in this lecture series, we are going to learn about writing task 2. And so basically um, there are 4 types of essays, because task 2 is what? Your essay writing. So there are 2 types of essays that come. Oh, sorry, there are 4 types of essays that come in task 2. Okay. So task 2 is essay writing. And what are those 4 types of essays? We will be learning about them. So tell me if you want to know what are the 4 types, or do you want to know anything else. So the 4 types of essays is firstly advantage, disadvantage type. The next one is opinion based. Further, the next one is problem and solution. And the next one lastly is discussion essay. So we'll start our learnings with advantage and disadvantage. उससे पहले कुछ जनरल टिप्स है, तो आपको इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है, ठीक है? हाउ डू यू हैव टू फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप. सो द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज रीड द एसे टॉपिक. पहले तो एसे टॉपिक पढ़ो. ओके, ऑलवेज फर्स्टली रीड द एसे टॉपिक. फिर सेकेंडली अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ऐसे. क्वेश्चन पढ़ा ऐसे टॉपिक का, फिर हम समझेंगे कि किस टाइप का ऐसे, ईदर इट इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ओपिनियन बेस्ड और प्रॉब्लम और डिस्कशन टाइप ऐसे. देन थर्डली वी विल ब्रेनस्टॉर्म ideas as per the pattern. So I will discuss the pattern. There's a standard structure given as something similar to task 1, and we have to jot down the main points and decide the thesis statement. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. इसमें इन्होंने एक पॉइंट में मैंने 3 बातें कही है कि हमें क्या करना है. हम क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे आइडियाज. ब्रेनस्टॉर्म यानी टॉपिक से रिलेटेड आइडियाज सोचेंगे एज पर द पैटर्न, एंड देन वी आर गोइंग टू जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स एंड डिसाइड द थीसिस स्टेटमेंट. सो थीसिस स्टेटमेंट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन, और वो हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में. एंड लास्टली we'll begin typing. So after this obviously we'll begin to type, and then lastly we will proofread before submitting. That is very important. So ये एक general flow chart है how you have to work when you see a question, essay question. And सबसे important है कि आपको समझ में आना चाहिए, understand, you must be able to understand what is the type of essay. और ये तभी होगा जब आप चारों टाइप के essay के बारे में पढ़ेंगे और उनके questions solve करेंगे. Alright, तो हम बिगेन करेंगे फर्स्ट वन से, दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टाइप ऑफ ऐसे. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टाइप ऑफ ऐसे, और इसके टिप्स क्या है, ओके, ये हम अभी देखेंगे. तो एडवांटेज, और क्योंकि टास्क 2 का वेटेज हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, इन राइटिंग टास्क, तो आपको स्टार्ट करना है पेपर विद टास्क 1, सो यू हैव मोर टाइम टू सॉल्व टास्क 2. Okay, we have also learned about the types of essay. So advantage, disadvantage, opinion based, problem and solution essay. This is also known as cause and solution essay. And then there is discussion essay. So we'll begin with advantage, disadvantage. Before this I'll give you a general revision that word count for task 2 is minimum 250 words and maximum is 350 to 370 words, because it's an essay, so you can write more, not more than this. You can write more than this, but then your chances of getting your chances of making mistakes will increase. Lexical resources obviously 20 or 20 plus band 9 words, and linkers or cohesive devices, it should be again 20 plus linkers present होने चाहिए. अब क्या आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज में. पहले हम टिप्स से स्टार्ट करें कि पहले हम स्ट्रक्चर से स्टार्ट करें. तो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स. सो टिप्स इज कि स्पेंड टाइम इन प्लानिंग
what the benefits, planning the benefits and the drawbacks. तो हमें पता है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो हमें प्रोज एंड कॉन्स लिखने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के. तो हमें प्लानिंग करनी है पहले. वी आर विल ब्रेनस्टॉर्म आवर आइडियाज टू राइट बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स. ठीक है. So this is the first step. That is how you need to start. And then you have to write minimum of 250 words. With that, you have to make sure that you have relevant supporting ideas or examples. So relevant supporting ideas और examples आपके पास होने चाहिए. Okay, and collate your advantages together in one body paragraph and the same with disadvantage. So अगर मैं कहूँ एक body paragraph यानी body paragraph 1, तो that should only be about advantage and nothing in that should be about disadvantage. तो इसमें 2 पॉइंट्स लिखेंगे एक एग्जाम्पल या 3 पॉइंट्स लिखेंगे एक एग्जाम्पल. एंड सिमिलरली बॉडी पैरा 2 अगर आप डिसएडवांटेज लिख रहे हो तो दैट शुड ऑलवेज बी रिलेटेड टू ओनली डिसएडवांटेजेस नॉट एडवांटेजेस. ठीक है. इंक्लूड एग्जाम्पल्स इन बोथ द पैसेज. तो एग्जाम्पल्स ऐड करना मस्ट है क्योंकि दैट इज अवर पार्ट ऑफ योर टास्क. अगर आपने मेरे पहले के वीडियो लेक्चर सीरीज सुने होंगे कि टास्क फोकस का क्या मतलब होता है, तो उसमें हमने कहा था कि एक आउट ऑफ दैट वन क्वेश्चन, एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन में भी रहेगा लिखा हुआ गिव रेलिवेंट सपोर्टिंग आइडियाज और गिव एग्जाम्पल्स फॉर द सेम. तो राइट एग्जाम्पल्स, दैट इज मस्ट. फिर नेक्स्ट स्टेप है कि नेवर क्लब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टुगेदर इन द सेम पैराग्राफ. द एग्जामिनर विल लुक फॉर लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ द पैराग्राफ्स. तो ऐसा नहीं कि एक एडवांटेज के बारे में लिखा दूसरा डिसएडवांटेज, इसके विद इन में भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए. जैसे मैंने बताया ना कि 2 पॉइंट्स लिख के और फिर उससे कोरिलेटेड एग्जाम्पल्स या 3 पॉइंट लिख के उससे कोरिलेटेड एग्जाम्पल. Lastly, follow a safe advantage and disadvantage essay model. Don't try to be over smart. हो सकता है आपको टॉपिक इजी मिल जाए या उस टॉपिक के बारे में आपके पास बहुत कुछ हो कहने को, बट हमें ये ध्यान रखना है कि हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं. ठीक है. नॉट अबाउट योर नॉलेज. दे विल टेस्ट योर लैंग्वेज. फिर नेक्स्ट आता है विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू टास्क टू डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज, कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमें यूज करना है ना. स्ट्रक्चर बोले तो what kind of like format you have to use while answering such questions. Okay, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. स्ट्रक्चर इज प्रीटी सिमिलर टू द टास्क 1 टाइप, कि पैराग्राफ 1 जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन के बारे में. ओके, एंड यू हैव टू स्पेंड मैक्सिमम 5 मिनट्स ऑन दिस. इसमें आपके डिफरेंसेस 4 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 एंड सेंटेंस 4. अब क्या होगा, सेंटेंस 1 में आएगा जनरल स्टेटमेंट. जनरल स्टेटमेंट, फिर आएगा पैराफ्रेज द क्वेश्चन, फिर आएगा थीसिस स्टेटमेंट, फिर आएगा आउटलाइन ऑफ आइडियाज और आउटलाइनिंग ऑफ आइडियाज. ठीक है. तो पैरा 1 इंट्रोडक्शन में जनरल स्टेटमेंट होगा, दैट इज ऑप्शनल. ओके, और आउटलाइन ऑफ आइडियाज जो है वो भी ऑप्शनल है या प्रेफरेबल है. बट दीज टू विच आई एम टॉकिंग अबाउट सेंटेंस 2 एंड सेंटेंस 3 आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी प्रेजेंट. ये शॉर्ट मैंडेटरी हैं एंड यू कांट स्किप सच सेंटेंसेस. यू हैव टू राइट सच सेंटेंसेस. तो ये पैरा 1 के बारे में हो गया कि हमें एक जनरल स्टेटमेंट लिखना है, पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को, थीसिस स्टेटमेंट लिखना है और आउटलाइनिंग ऑफ आइडियाज लिखनी है. नेक्स्ट आता है पैरा 2 जो कि होगा एडवांटेजेस के बारे में, एडवांटेजेस. और पैरा 3 है जो कि होता है डिसएडवांटेजेस के बारे में. तो इन दोनों ही केसेस में, ठीक है, वेदर यू आर राइटिंग अबाउट एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन दोनों ही केसेस में हमें 10 मिनट्स देना है इंडिविजुअली. 10 मिनट्स यू हैव टू गिव इंडिविजुअली. ठीक है. और इन भले ही आप पैरा 2 लिख रहे हो एडवांटेज के बारे में, पैरा 3 लिख रहे हो डिसएडवांटेज के बारे में, बट इसमें जो सेंटेंसेस आएंगे दोज आर कॉमन. यानी कि इसमें भी 4 सेंटेंसेस मैंडेटरी आपको लिखना है. एंड दैट इज फर्स्ट इज अबाउट टॉपिक सेंटेंस, कि आप किस टॉपिक पैराग्राफ के किस टॉपिक सेंटेंस पे बात करोगे. फिर इसी को आपको इलैबोरेट करना है, इलैबोरेट द आइडिया. ठीक है. फिर आपको करना है डिस्कस विथ एग्जाम्पल. डिस्कस विथ एग्जाम्पल, इसका जो आपने इलैबोरेट किया आइडिया उसको एग्जाम्पल से ही डिस्कस करना है. एंड देन कंक्लूड द टॉपिक. सो दिस इज अ कॉमन फॉर्मेट वेदर यू आर राइटिंग डिसएडवांटेज और यू आर राइटिंग एडवांटेज. ओके, सो ओनली 10 मिनट्स टू बी स्पेंट ऑन इंडिविजुअल पैराग्राफ्स. फिर आता है पैरा 4 विच इज कंक्लूजन.
और इसमें आपको टोटल 5 मिनट्स स्पेंड करने हैं. ओके. इन सेंटेंस 1 you would have to write about summary. In sentence 2 आपको बात करनी है, you have to restate the thesis statement. Sentence 3 you have to predict recommendations if any and this is optional. तो क्या होगा कंक्लूजन पार्ट में, पहला तो आएगा समरी, दूसरा आएगा थीसिस स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है, और तीसरा आएगा प्रेडिक्शन, दैट इज ऑप्शनल. सो यू हैव टू स्पेंड मैक्सिमम 5 मिनट्स ऑन दिस, नॉट मोर देन दैट. और ये सब तभी आ पाएगा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की. ठीक है. अब वर्ड लिमिट की बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपके लाइक यू हैव टू राइट अराउंड 35 to 50 वर्ड्स. ओके. इन paragraph 2 and paragraph 3 individually you have to write 100 words, para 2 में 100 and 100 words in para 3. ठीक है. para 4 that is conclusion, तो उसमें आपको around 25 to 30 words लिखने हैं. तो कुल मिला के हमें कितने लिखने थे, 250 वर्ड्स हमें मिनिमम लिखने हैं. तो 50 वर्ड्स ये, ठीक है, 30 वर्ड्स ये एंड 100 वर्ड्स ये, तो 200 और 50 वर्ड ये, तो 250 तो यही हो गए एंड 30 मोर. सो कुल मिला के अगर आप मैक्सिमम साइड से देखोगे तो 280 वर्ड्स तो आपके ये टोटल हो ही गए. मतलब इट्स मोर देन 250 एंड दैट इज गुड. तो ये इजी रहेगा याद रखना कि अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड शुड बी रिटन इन ईच पैराग्राफ इंडिविजुअली. 50 वर्ड शुड बी रिटन इन इंट्रोडक्शन बिकॉज ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेंटेंसेज टू बी रिटन आर मोर. ठीक है. और समरी में उससे बस 20 वर्ड्स कम, दैट इज 20 वर्ड्स कम. तो क्योंकि सेंटेंसेज कम है, नंबर ऑफ सेंटेंसेज ओनली 30 वर्ड्स. तो यहाँ पे आके आपका बढ़िया सा एक ऐसे बन जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपके पास 40 मिनट रहेंगे राइट, ओवरऑल टास्क 2 परफॉर्म करने के लिए. तो यहाँ पे कैसे डिवाइड करना है आपको कि पहला 5 मिनट जो है आपका जाएगा ब्रेनस्टॉर्म करने में. यू विल रीड द क्वेश्चन, यू विल ब्रेनस्टॉर्म द आइडिया. फिर 5 मिनट जाएगा आपका इंट्रोडक्शन लिखने में. फिर 10-10 मिनट जाएंगे आपके 10 मिनट्स इंडिविजुअली टू राइट बॉडी पैरा 1 टू राइट बॉडी पैरा 2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है. और फिर आपके 5 मिनट जाएंगे कंक्लूजन लिखने के लिए, और फिर आपके अनदर 5 मिनट्स जाएंगे समरी प्रूफ रीड करने के लिए, टू प्रूफ रीड. तो ऐसे करके आपके दीज आर 10, सो दिस इज 20 मिनट्स. ठीक है. ये 10 मिनट्स और ये 10 मिनट्स. सो ऐसे करके आपके टोटल 40 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे. यहाँ पे वर्ड लिमिट कितनी थी, मैक्सिमम 50 वर्ड्स. यहाँ वर्ड लिमिट थी 100 एंड 100 इंडिविजुअली, और यहाँ पे वर्ड लिमिट थी 30 वर्ड्स मैक्सिमम. सो ऐसे करके आपके 280 वर्ड्स हो जाएंगे. बट ज़रूरी नहीं कि आपको बस 250 से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्स तो आप 380 तक भी जा सकते हो. ठीक है. सो अगर आपको, हमने बैंड डिस्क्रिप्टर्स पढ़े थे इस टास्क के लिए, टास्क 2 के लिए. अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो का इस लेक्चर सीरीज का राइटिंग पार्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 जाके पढ़ सकते हो. इंट्रोडक्शन पार्ट में और बैंड डिस्क्रिप्टर पार्ट में हमने पढ़ा था कि टास्क फोकस इंपॉर्टेंट है. मतलब टास्क अचीवमेंट इज फॉर टास्क 1 एंड टास्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट वाज द वर्ड गिवन टू इट, आई एम फॉरगेटिंग. टास्क अचीवमेंट वाज गिवन टू दिस एंड टास्क रिस्पॉन्स. यस, आपका टास्क रिस्पॉन्स टास्क 2 में पूरा का पूरा होना चाहिए एज पर द क्वेश्चन डिमांड्स. अगर बैंड 5 बैंड डिस्क्रिप्टर में लिखा है कि बैंड 5 उसको मिलता है जो कि कोई ना कोई एक पार्ट एड्रेस करना भूल जाता है. बैंड 5 इज गिवन टू दोज हु हैव फॉरगॉटन टू एड्रेस इवन वन ऑफ द टास्क्स एंड मार्क्स आर रिड्यूस्ड अंडर टास्क रिस्पॉन्स. हाउएवर, अगर आपको बैंड 6 चाहिए, मतलब आपको अगर बैंड 9 के लिए तो हम एम ही कर रहे हैं, ठीक है, पर बैंड 9 लाने के लिए अगर आपने क्वेश्चन का एक भी टास्क आपने मिस कर दिया, यू हैव फॉरगॉटन टू राइट एनी और आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चंस, तो आपका 9 से डायरेक्ट 5 बैंड स्कोर आ जाएगा. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, दे हैव रिटन अ गुड ऐसे जो डिजर्व करता था 7, 8, 9, बट बिकॉज उन्होंने एक चीज स्किप कर दी, डायरेक्टली उनका बैंड स्कोर 9 से 5 पे चला गया, 8 से 5 पे चला गया. तो बैंड 6 इज द मिनिमम बैंड स्किप, दैट इज बैंड 6 इज गिवन, दैट इज द लीस्ट to one who has addressed all the parts of the task all throughout, although same parts may be fully covered than others. तो भले ही आपने किसी पार्ट के बारे में बहुत कम लिखा हो और किसी के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हो, बट एटलीस्ट सारे पार्ट अटेम्प्टेड है.
ठीक है। 10th बोर्ड में हमें कहा जाता था एटलीस्ट हमारे सीबीएसई स्कूल में कि वेदर 12th बोर्ड में भी कि वेदर यू नो द आंसर और नॉट जस्ट अटेम्प्ट इट, बिकॉज अटेम्प्ट के भी मार्क्स मिलते थे। तो हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे लिंकर्स में, इट्स अ क्विज क्वेश्चन, 15 to 17 और 20 लिंकर्स। और बैंड 9 वर्ड्स कितने लिखने हैं, क्विज क्वेश्चन जल्दी बताओ, 15 to 20 बैंड 9 वर्ड्स। ठीक है। फिर कॉन्स्ट्रैक्टर्स, तो ये इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे लेक्सिकल रिसोर्स में, और लिंकर्स में आपको मार्क्स मिलेंगे अंडर कोहेरेंस एंड कोहिशन। फिर कॉन्ट्रास्टर्स एंड ईडियम्स कांट बी यूज, आप ईडियम्स और कॉन्ट्रास्टर्स और सिमिलीज ये सब नहीं यूज कर सकते, बिकॉज दे एज दे आर इनफॉर्मल एंड वी आर सपोज टू राइट इन सेमी फॉर्मल लैंग्वेज। एग्जाम्पल लाइक कॉन्ट्रास्टर्स, कॉन्ट्रैक्शंस लाइक क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टर्स क्या होते हैं, कांट, ऐसे वोंट, ऐसे शब्दावली आप नहीं यूज कर सकते। 20 बैंड 9, ठीक है। मेक ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आपको सिंपल सेंटेंस भी बनाने हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाने हैं, और कंपाउंड सेंटेंस भी बनाने हैं। और इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं राइटिंग वीडियो के फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में ही, पार्ट 1 पार्ट 2 में ही, वेयर वी इंट्रोड्यूस एंड टॉक्ड अबाउट द बैंड डिस्क्रिप्टर्स। पर काउंट ऑफ सिंपल सेंटेंस वुड बी लेसर देन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस, तो इसका काउंट हमें कम रखना है। तो हमने फ्लो चार्ट तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया है कि हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें लिखना है, हमें रीड करना है ऐसे टॉपिक। तो हमने ऐसे टॉपिक को रीड कर लिया, ओके। फिर हम क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइप ऑफ ऐसे, किस टाइप का ऐसे है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ टास्क, ये आपको फिजिकली काउंट करना है, ओके। 5 टास्क 6 टास्क, ये भी काउंट करना मैंने उस वीडियो में सिखाया था, इसमें भी सीखेंगे, बट उस वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि आपको कैसे काउंट करना है। देन what are those 2 types? First one is, what are the advantage and disadvantage, and what's your opinion? What's your opinion? तो ये अब इसी क्वेश्चन में 2 टास्क बन गए, एक्चुअली 3 टास्क। एडवांटेज भी लिखना है, डिसएडवांटेज भी लिखना है। इसको हम एक क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो हम अलग अलग ही लिखेंगे ना, एक बॉडी पैरा 1 में, एक बॉडी पैरा 2 में। अगर आप एक कंसिडर कर लोगे तो यू विल बी डिस्टर्बिंग नॉट ओनली द फॉर्मेट बट ऑल्सो यू विल बी फॉरगेटिंग टू राइट सम पॉइंट्स, एंड देन यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन एज वेल। तो ये 3 टास्क हो गए कि क्वेश्चन में, दिस इज हाउ वी रीड हाउ मेनी टास्क आर गिवन। अब सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइम इज डू दी disadvantage outweighs the advantages, ठीक है। तो outweighs का मतलब क्या होता है, outweighs means which is more, which is more, whether the advantage is more या disadvantage is more. So this is also a task, ये मैं लिख रही हूँ ताकि आपको ये skip ना हो जाए, this is also a task and you have to mention mention about it, and band score will be, and if you don't then band score will be 5, okay, without a doubt. तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक सिंपल एडवांटेज डिसएडवांटेज, जिसमें आपको एडवांटेज लिखना है, फिर डिसएडवांटेज लिखना है, अगर वो आपका ओपिनियन पूछ रहा है तो वो लिखना है। दूसरा टाइप आता है कि क्या वो बुरी चीज़ उसकी अच्छी चीज़ से ज़्यादा आउटवे करती है, ज़्यादा मायने रखती है या ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है, विच इज़ मोर, डिसएडवांटेज और एडवांटेज। तो हम लिखेंगे, पहला टास्क हमारा क्या होगा इसमें, पहला टास्क होगा टू राइट द डिसएडवांटेज, दूसरा टास्क होगा टू राइट द एडवांटेज, और तीसरा टास्क होगा कि विच वन ऑफ देम आउटवेज द अदर। तो सो दिस इज ऑल्सो टास्क एंड यू हैव टू मेंशन, अदरवाइज योर बैंड स्कोर विल डिक्रीज।
तो इस केस में यू विल हैव टू राइट एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टेल विच इज मोर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, which is more disadvantages, advantageous, am I writing the right spelling, advantageous, okay, or dis or advantageous, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है. एंड इन इंट्रो एज वेल. अब हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इंट्रो में भी आपको ये मेंशन करना है, इन इंट्रो एज वेल, in outro and conclusion, as well as in outro and conclusion. You have to mention it not only in the intro but also in the outro and conclusion, that I think that the disadvantage outweighs the advantage. तो एक सैम्पल क्वेश्चन देती हूँ मैं, इसका आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट में पोस्ट करना है एंड आई विल जज. ठीक है, कि लेट्स टाइप इट डाउन. ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन कि पीपल आजकल मूविंग कर रहे हैं मूविंग टूवर्ड्स आउट टाउन शॉप्स इंस्टेड ऑफ इन टाउन शॉप्स. अब इसमें मेरे को काउंट करना है टास्क, तो मैं कैसे काउंट करूँगी? ये तो मेरा क्वेश्चन टाइप हो गया, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ माई क्वेश्चन. ये तो मेरी हेडिंग हो गई, इस पर मुझे आंसर लिखना है, ऐसे लिखना है. मेरे टास्क क्या हुए? डू द एडवांटेज ऑफ दिस ट्रेंड आउटवेज द डिसएडवांटेज. अरे यार, दिस वॉइस टाइपिंग डजंट वर्क विथ मी, आई डोंट नो व्हाई. आउटवेज द एडवांटेजेस, यू हैव टू गिव रीजंस एंड इंक्लूड एनी रेलेवेंट एग्जाम्पल. यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स. पहला टास्क हुआ, विल राइट विथ रेड पेन. पहला टास्क हुआ डिसएडवांटेज, दूसरा टास्क हुआ एडवांटेज. जब आपने ये दोनों लिख लिए तो आप लिखोगे आउटवेज के बारे में, दिस इज योर थर्ड टास्क. गिव रीजंस, आप इन तीनों चीज़ के लिए अपने रीजन दोगे, दिस इज द फोर्थ टास्क. You have to include relevant example, this is your fifth task, and you have to write in least 250 words, this is your sixth task. तो जब आप बॉडी पैरा 1 में इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट डिसएडवांटेज फॉर एग्जाम्पल, और बॉडी पैरा 2 में यू आर राइटिंग अबाउट एडवांटेज फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप के पैटर्न में ना एक बॉडी पैराग्राफ और जुड़ जाता है. ओके, बट हम वो डिस्कस करेंगे अभी. हाउएवर, आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखनी कि इन्होंने जो यहाँ पे बोला ना गिव रीज़न, इट्स नॉट जस्ट फॉर आउटगोइंग. अगर आप डिसएडवांटेज के भी पॉइंट लिख रहे हो, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे. सेम गोज फॉर बॉडी पैरा 2 वेर यू हैव टू गिव एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. इसमें टोटल 6 टास्क है. अब अगर आपने 250 से कम वर्ड्स लिख दिए, या फिर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, या फिर आपने आउटवेज के बारे में कुछ नहीं लिखा, या फिर आपने रीजंस अच्छे से प्रोवाइड नहीं किए फॉर ईच इंडिविजुअल बॉडी पैरा और पॉइंट, तो आपका टास्क अचीवमेंट नहीं माना जाएगा. आपने टास्क रिस्पॉन्स, या आपको टास्क दिया था, उसमें से 6 टास्क में से अगर आपने एक भी टास्क माइनस कर दिया, भूल गए लिखना, तो ये 5 टास्क बचे आपके, तो भी आपको 9 बैंड स्कोर से या 8 बैंड स्कोर से आप डायरेक्टली 5 बैंड स्कोर पर आ जाओगे. सो नोइंग द टास्क, जो हमने यहाँ फ्लो चार्ट में पढ़ा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ यू शुड ऑल्सो नो हाउ मेनी नंबर ऑफ टास्क आर गिवन टू यू, which is very important. People skip on this. Okay, I have seen many beautiful kids losing marks just because they forgot to read. Oh, okay, these were the tasks given to me. ठीक है, तो हमें जब एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, तब उस टाइम पे अ जनरल सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक